गुड आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस जी मैम। मैम। तो इसका सॉल्यूशन आ गया, ये जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैम बोला था ना निकालने के लिए। मैम नहीं ट्राई कर पाया। ठीक है, अभी ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट वाज द आंसर। तो कल हमने कुछ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लिया था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि V2 विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, फॉर D2D students, this class test is not important for you. If you want to give, you can give, but because as per college rules, you are not doing any class of third semester, so you can miss the मतलब you cannot, if you want you cannot give the class test because तुम लोग के लिए फिर अलग से conduct कराया जाएगा. Right now the classes are being conducted for regular students, so class test भी उसी हिसाब से marks दिया जाएगा regular students को. So okay, so question was this: the load shown in the figure is supplied by 400 volt three-phase source RYB sequence. The load is balanced and inductive, drawing 3464 volt ampere. When the switch is placed at S position, 3 wattmeters W1, W2 and W3 read 577.35 watt each. तो ये हमारा फिगर था जहाँ पर ये स्विच S है, दिस इज योर स्विच S, और इसको जब N पोजीशन पे लगाए हैं तो N पोजीशन पे लगाने पे ये तीनों वाट मीटर 3 वाट मीटर मेथड के फॉर्मूला से these 3 watt meters will measure the total three phase power W1, W2 and W3. ठीक है, when the switch is connected to N, W1 and W3. So when the switch is connected to N, the wattmeter will measure, all three wattmeters are measuring 577.35 watt. ठीक है, तो यहाँ से हमको टोटल पावर of the circuit पता चल जाएगा, because when the switch is connected to S N, उस टाइम का पावर हमको मालूम है. Now the question is, the question is when the switch if the switch is moved to position Y, the readings of the wattmeter will be. Now if you see from the figure, when the position is moved to Y, the switch position is moved to Y, at that point this second wattmeter will get short circuited, because this potential coil of second wattmeter is already connected to Y from one side, and if you connect it again to Y from the other side, this potential coil of wattmeter 2 will be short circuited. So W2 will measure 0 and W2 will not measure any power, because the potential coil of second wattmeter is getting short circuited when you are connecting this switch to Y phase. Now wattmeter 1 and wattmeter 3 will be responsible for measuring the total power in the three phase circuit, which will measure the total power with the help of 2 wattmeter method. तो एक wattmeter जो है वो already eliminate हो गया है. So from the options available, जो options यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें से सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में W2 की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, बी एंड डी विल ऑलरेडी बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज इसमें W2 की वैल्यू 0 नहीं दी गई है. नाउ ए एंड सी हैज the value of W2 as 0. You have to calculate the value of W1 and W3. ठीक है, टोटल पावर पता है वोल्ट एम्पियर में
लोड क्या वैल्यू है, अपरेंट पावर ऑफ लोड पता है, टोटल एक्टिव पावर पता है, वहां से हमको cos फाई की वैल्यू पता चल जाएगी। यस और नो? यस मैम। हाँ, तो अब उसके बाद cos फाई की वैल्यू पता चल गई है, तो W1 और W3 भी तुम निकाल सकते हो। निकालो कितना आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos फाई। यहाँ से हम यहाँ तक कल हमने डिस्कस किया था, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। Apparent power is given as 3464, total power is this, so cos phi will be equal to total power divided by apparent power, so this will give you how much? Cos phi की वैल्यू कितनी आ रही है? Anyone? मैम 1732 है या 4 है? 1732 है। वन सेवन थ्री टू है। First of all, tell me the value of cos phi. मैम 0.99। 1 के आसपास है। 1 के आसपास कैसे आएगा? डायरेक्टली अगर तुम देखो 3464 इसका ट्वाइस है। 1700 का ट्वाइस 3500 होता है। ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास होना चाहिए। यस मैम 0. डायरेक्टली कोई भी अंधा भी देख के बता देगा। तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है निकालने में cos फाई की वैल्यू। ठीक है, नाउ cos फाई की वैल्यू 0.5 है, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 5 का वैल्यू 0.9 आ रहा है। फाई का वैल्यू 0.9 कैसे आ सकता है? सॉरी मैम। cos फाई की वैल्यू 0.5 है, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। 60 डिग्री होगी। ओके, ठीक है। नाउ यू सी अभी हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इस इक्वेशन में फेजर डायग्राम के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हमको वॉटमीटर 1 और वॉटमीटर 2 की रीडिंग बतानी है। कैसे बताएंगे? वॉटमीटर 1 से जो करंट कॉइल से फ्लो हो रहा है करंट, दैट इज IR, and the potential coil is measuring the voltage, line voltage VRY, right? Similarly, current coil is measuring the of wattmeter 3 is measuring current IB, and potential coil is measuring the voltage VBY. ठीक है, इतना क्लियर है? Because the phase sequence is given to you, you will have to draw the value of draw the phasor diagram. ठीक है, डायरेक्टली अगर सब्सटीट्यूट करने जाओगे तो यू विल नॉट गेट अ करेक्ट आंसर, इसीलिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करके उसके बाद वैल्यू निकालने का कोशिश करो। ठीक है, सो लेट अस सी द फेजर डायग्राम। दिस इज योर VR,
वी वाई, फेज सीक्वेंस दिया हुआ है आर बाई बी, सो यू विल अकॉर्डिंगली ड्रॉ वी आर, वी वाई एंड वी बी. ठीक है. नाउ फर्स्ट वॉट मीटर इज मेजरिंग वी आर वाई, आई आर और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर. ठीक है. तो अब पहला चीज़ है कि वी आर वाई ड्रॉ करना होगा, तो वी आर वाई विल बी समवेयर हियर. इंडक्टिव लोड दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो योर एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड द करंट विल बी लैगिंग. तो अगर हम करंट बनाए फर्स्ट ऑफ ऑल, सो करंट तुम्हारा कॉस फाइव की वैल्यू आई थी 60 डिग्री, राइट. फाइव की वैल्यू 60 डिग्री आई थी, यानी पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज 60 डिग्री. Sorry, power factor of the load is 0.5, angle is 60 degree. So angle 60 degree पे हमने IR बनाया, again angle 60 degree पे IY बनाया, this is your VY. ठीक है. again lagging angle 60 degree पे IB बनाया. till here it is clear? Anyone having any problem? This is 60 degree. Anyone having any problem यहाँ तक? नो मैम. ठीक है. ये बना लिया. नाउ योर क्वेश्चन वाज वी आर वाई और आई आर के बीच में एंगल कितना है. नाउ फ्रॉम हियर दिस एंगल विल बी, टोटल एंगल विल बी 60 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. ये टोटल एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है. सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. सो टोटल एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर इज 90 डिग्री. यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है. सो W1 विल मेजर हाउ मच? 0. 0 होगा. ठीक है. now go back to your options again. Option A is the right answer. ठीक है. क्लियर है. ऑप्शन सी में क्या था? ऑप्शन सी में W1 की वैल्यू 866 लिखी हुई थी. So option A is having W1 is equal to W2 is equal to 0 and W3 is measuring the total active power of the circuit. Is it clear? Yes or no? So this can be a condition. तो यहाँ से तुमको दिख रहा है कि even though you have connected 3 wattmeters in your circuit, the total power is being measured by a single wattmeter because of the connections you have done. ठीक है. तो ये जो कनेक्शन तुमने किया है इसकी वजह से 2 wattmeters are measuring 0 power and the total power is being measured by the third wattmeter. So instead of मैम giving, थर्ड वॉट मीटर कहाँ टोटल पावर मेजर कर पाया, टोटल एक्टिव पावर? अगर 2 wattmeter पावर मेजर नहीं कर रहे हैं तो थर्ड wattmeter जो है वो टोटल पावर मेजर करेगा. अगर इस तरीके से नहीं भी करना है तो यू कैन कैलकुलेट इट. कैसे कर रहे हैं ये भी देख सकते हैं. VBY और IB के बीच का एंगल देखो कितना है. एंगल बिटवीन VBY एंड IB, ये तुम्हारा VB है, ये माइनस ऑफ Y है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं मैम टोटल मैम तो 3000 कुछ लिखा हुआ था, अभी कैलकुलेट मल्टीप्लाई किए तो 577 से वो ना था टोटल एक्टिव पावर. टोटल एक्टिव पावर तो each wattmeter is measuring 577.35, तो टोटल एक्टिव पावर कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ दिस होगा. यस मैम, लेकिन वॉट तो मीटर वही 3 तो तो वही तो ये मेजर कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ यस मैम, यस मैम, यस मैम, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. ठीक है. हो गया. अगर तुम चाहो, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन को देख करके तुम आंसर कर पा रहे हो. ठीक है. अगर यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप में अगर आता तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ता W3 की वैल्यू.
ठीक है। तो कैलकुलेट भी अगर करोगे, यू कैन कैलकुलेट एंड सी, अगर वी बी वाई और आई बी के बीच का एंगल देखोगे, यहाँ पर वी बी वाई तुम्हारा रिजल्टेंट एंगल बनाएगा, तो वी बी वाई और आई बी के बीच का जो एंगल बन रहा होगा, दैट एंगल वुड बी 30 डिग्री। ठीक है। तो अगर तुम आई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वीबी की वैल्यू 400 तुमको दी हुई है, यू कैन अगेन कैलकुलेट द पावर ऑफ द थर्ड वॉट मीटर। ठीक है। तो आइदर वे ऑप्शन दिया हुआ है, आई एल की वैल्यू या आई बी की वैल्यू हो जाएगी 1732 टोटल एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई √3 ऑफ वी एन इंटू कॉस फाइव। ठीक है। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ आई बी। वी बी की वैल्यू ऑलरेडी 400 वोल्ट तुम्हारे पास है, तो वहाँ से भी तुम W3 की वैल्यू निकाल सकते हो। सो इट इज़ योर विश, दोनों में से किसी भी एक तरह अगर नहीं तुम्हारा दिया रहेगा तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लोगे। एंगल बिटवीन वी बी वाई एंड आई बी विल बी 30 डिग्री। देख लेना फेजर डायग्राम ड्रॉ करके। सो एंगल बिटवीन वी बी वाई एंड आई बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। So this was about active power measurement using 3 watt meter, using 2 watt meter, and also you can measure this active power by a single watt meter। अगर ये mentioned हो कि जो भी load connected है, जो भी load connected है phase में, that phase is, that load is same for all the 3 phases। ठीक है। और वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगर सेम है तीनों फेज में, तो बाय मल्टीप्लाइंग 3 इंटू वी फेस आई फेस कॉस फाइव, यू कैन मेजर द पावर बाय सिंगल वॉट मीटर ऑल्सो। सिंगल वॉट मीटर मेजरमेंट, 3 फेस पावर बाय सिंगल वॉट मीटर मेजरमेंट। यानी कि अगर अगर एक वॉट मीटर तुम्हारे पास है, तो दैट by using, by measuring power of one phase and multiplying it with 3, you can get the total 3 phase power of the circuit। but the condition is कि तुम्हारा जो load at each phase होना चाहिए वो same होना चाहिए। so under that condition, under that balanced condition, you can measure the 3 phase power by single watt meter method also। तो 3 फेज पावर मेजरमेंट का 3 तरीका तुमको पता चल गया, बाय सिंगल फेज, बाय 2 सिंगल वॉट मीटर मेथड, बाय 2 वॉट मीटर मेथड एंड बाय 3 वॉट मीटर मेथड। आउट ऑफ 3, 2 वॉट मीटर मेथड इज most applicable method in case of measurement of 3 phase power। ठीक है। This was about measurement of active power। Now if we talk about measurement of reactive power, तो कैसे मेजर करते हैं? ठीक है। In case of measurement, what is the formula of reactive power in case of 3 phase? 3 into VRMS into IRMS sin phi। 3 into VRMS IRMS sin phi। ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला हमको चाहिए आउट ऑफ आवर कनेक्शन एंड फेजर डायग्राम इन केस मैम ऑफ, इसमें से √3 होता है ना? नहीं इन इसमें फिगर 3, इसमें 3 होता है। रिएक्टिव पावर मेजरमेंट में Q इज इक्वल टू 3 इंटू VRMS IRMS इंटू साइन फाइव। ठीक है। सो yes, so let us draw the first circuit of the reactive power measurement। reactive power measurement भी कई types के हैं। you can do it by 2 watt meter, 3 watt meter, but reactive power measurement by single watt meter is famous, and that is what you have to study, by single watt meter method। ठीक है। व्हेन जब काम 1 वॉट मीटर से चल जा रहे हैं, तो 2 वॉट मीटर कनेक्ट करने का
कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सिंगल वॉट मीटर से ही का ही यूज़ करते हैं. So suppose your current coil is connected to your second winding. This is your 1, 2, 3, first phase, second phase and third phase, and your potential coil in case of reactive power measurement is connected in between first phase and third phase. ठीक है. So this is your connection of reactive power. ये है हमारा वॉट मीटर. ठीक है. So this potential coil is measuring the potential between line 1 and line 3, and current coil is measuring the line current from the second phase. ठीक है, line 2. So now by phasor diagram बनाओ और देखो कि what are you getting as a resultant. मतलब अगर हम इसका phasor diagram बनाते हैं, so power will be equal to V13 I2 cos of angle between I2 and V13. ठीक है. ज़रा खुद से फेजर डायग्राम बना करके बताओ कि कितना एंगल कितना आ रहा है दोनों के बीच में. V1, V2, V3. V13 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? V3 को यहाँ लेके आएंगे. This will be minus of V3. Resultant of V1 and V3 will give you V13. लोड रेजिस्टिव है या इंडक्टिव? इंडक्टिव लोड बिकॉज ऑल दी लोड्स आर इंडक्टिव, इसलिए हम लोग इंडक्टिव ही लोड लेते हैं. I1, I2 and I3. ठीक है. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू. I2 और V13 के बीच का एंगल बताओ कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू यू. मैम 60 डिग्री. नहीं, 60 डिग्री तो नहीं आएगा. मैं 60 डिग्री प्लस 5 ना. ये phi है. If you are getting confused, this is your phi. मैं 60 डिग्री प्लस 5. Still not correct. ये है I2 तुम्हारा and this is your V13. सॉरी, यहाँ पे √3 टाइम्स ऑफ What is the angle between V2 and V13? ये 60 दोनों के डिग्री. बीच ये 60 डिग्री होगा. कैसे 60 डिग्री होगा? मैं V1 और V2 के बीच में तो 120 है ना, तो बाइसेक्ट करेगा ना अगर बैलेंस है तो.
के बीच में ना 120 है. तो V1 से तो This total angle is 60 degree. V1 और माइनस ऑफ V3 के बीच में जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है. अब तो बता सकते हो. बाइसेक्ट कर रहा है तुम्हारा माइनस ऑफ V3. V1 और V2 को बाइसेक्ट कर रहा है माइनस ऑफ V3. तो yes ma'am, माइनस yes. ऑफ V3 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, बाकी बचा हुआ. और इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है तुम्हारा 1/3 V13. सो दिस इज योर 30 डिग्री and this is your phi. So cos of 90 plus phi हुआ. Yes ma'am. So this can be written as √3 times of V phase I phase लिख सकते हो if you convert this line voltage. So you can write it √3 times of V phase I phase cos of 90 plus phi, and 90 plus phi will give you cos of 90 plus theta is Minus sin theta. minus sin theta. Yes, So minus sin. minus of √3 times of V phase I phase sin phi. So this is giving you the reactive power. Now total reactive power निकालने के लिए अगर इस पूरे को minus of √3 से multiply करेंगे, then you will get the value of total reactive power. Okay. So this is how you will calculate the reactive power in a circuit. See, phasor diagram is still creating problem for you. जबकि problem होना नहीं चाहिए. इससे ये तो बहुत ही ज़्यादा simple phasor diagram है. अभी critical phasor diagram आएगा जब current transformer पढ़ोगे तुम लोग, current और potential transformer. जब ये phasor diagram solve नहीं हो पा रहा है तो current और potential transformer का phasor diagram कैसे solve होगा? This is the simplest phasor diagram. V1, V2, V3 120 डिग्री के फेज एंगल में. जब माइनस ऑफ V3 लेकर के तुम नीचे आओगे तो वो माइनस ऑफ V3 V1 और V2 को बाइसेक्ट करेगा 60 डिग्री में. टोटल 120 था, अब ये 60 डिग्री हो गया और इधर का एंगल जो है ये भी 60 डिग्री हो गया. ठीक है. अब जब रिजल्टेंट निकालोगे V1 और माइनस ऑफ V3 के बीच में तो वो फिर इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा दो एंगल में 30 में. ठीक है. एंड ऑल दिस वी आर, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं दैट वी आर कंसीडरिंग दैट V1 एंड V2 एंड V3 आर सेम. ठीक है. बैलेंस्ड कंडीशन के लिए है ये सब. अगर बैलेंस्ड कंडीशन नहीं होगा तो ये कभी 30 नहीं होगा. इसीलिए फेज कभी भी देखो तो एग्जैक्ट फेज कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है. 30 डिग्री या एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं होता है, कभी 57 होगा, 27 होगा, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन ऑल थ्री फेसेस. सो अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा देन ओनली यू विल गेट इक्वल बाइसेक्शंस. सो 30 डिग्री. Now this was 60 degrees, 60 plus 30 will give you 90 plus 5, ये हो गया cos 90 plus 5. तो ये बेसिक फेजर डायग्राम है. इससे सिंपलिस्टिक फेजर डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. सो with this topic we are completing our measurement of power. So in first few lectures we have done measurement of voltage, measurement of current, then we have done extension of ammeter and voltmeter. फिर एरर्स इन मेजरमेंट देख चुके हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट देख चुके हैं. MI टाइप, PMMC टाइप, मूविंग आयरन टाइप, all these type of instruments we have covered. So the next type of measurement of measuring instrument is our energy meter. तो जो next topic है आज, क्योंकि we have a class test also, so before we start a class test सब लोग अपना कॉपी पेन ले लो. आई विल शो यू 5 क्वेश्चंस. तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन रहेगा. 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन. टोटल 10 मिनट्स में फोटो खींच करके मुझे मेल कर देना है. ठीक है. अपना सॉल्यूशन. क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है. सपोज फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, उसका सॉल्यूशन लिखा, आंसर लिखा, फिर अगेन सेम फॉर सेकेंड
क्वेश्चन, एक कॉपी पेन ले लो, ऐसा लिख करके पांचों क्वेश्चन का आंसर लिख के फोटो खींच करके मुझे मेल करना है, और उस पेज पे अपना नाम, रोल नंबर और सेमेस्टर, ठीक है, ये लिख देना, नाम, रोल नंबर, सेमेस्टर एंड बैच। समझ में आ गया सबको क्लास टेस्ट कैसे देना है? इज इट क्लियर? 5 क्वेश्चन है, 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बिकॉज द क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल यू विल नीड फ्यू लाइन्स टू सॉल्व इट, बस उसको सॉल्व करना, आंसर लिखना, नाम, रोल नंबर, सेमेस्टर, बैच लिखना, फोटो खींचना और मुझे मेल कर देना। और मेल आईडी क्या है? मेल आईडी मैं तुम लोग को व्हाट्सअप कर देती हूँ, ठीक है, तो उसी मेल आईडी पे मेल कर दोगे, एंड आई विल नॉट एंटरटेन एनी मेल आफ्टर 120। एक भी इसके बाद कोई भी मेल आएगा तो वो उसका सॉल्यूशन चेक नहीं होगा। सो आई एम सेंडिंग यू द मेल आईडी, उसी मेल आईडी पे मेल कर देना। सबको मेल आईडी मिल गया? यस और नो? सबको मेल आईडी मिल गया व्हाट्सएप पे? Yes, ma'am. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर टेस्ट एट 1 o'clock। अभी हमारे पास और 7 मिनट है, तब तक हम लोग एनर्जी मीटर डिस्कस करेंगे। 1 बजे क्लास टेस्ट शुरू करेंगे, 120 तक सबमिट कर देना है। 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हूँ मैं तुम लोग को, सो दैट यू कैन कंप्लीट इट बाय 120, ठीक है। वैसे तो 2-2 मिनट का ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट रिस्पॉन्स जो है वो मुझे मेल कर देना तुम लोग। So next topic is our single phase induction type energy meter. Induction type energy meter. Now there are very similarities between an energy meter and a वॉट मीटर। वॉट मीटर जो हमने अभी डिस्कस किया था उसमें भी प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल था। कंस्ट्रक्शन वाइज काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट ऑपरेशन जो है दोनों का, ऑपरेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखा जाए तो इसमें भी एक पीसी कॉइल होता है और एक सीसी कॉइल होता है। नाउ दिस करंट कॉइल, बिकॉज एनर्जी मीटर का काम क्या है, व्हाट डज एन एनर्जी मीटर डू? घर में लगा रहता है ना एनर्जी मीटर। अरे क्लास टेस्ट के नाम से तुम लोग तो बोलना ही छोड़ दिया, क्या हो गया? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So this is a simple diagram of a energy meter. एनर्जी मीटर का काम क्या होता है मैंने पूछा, एनीवन? हम यूनिट्स मेजर करता है ये। कितने यूनिट्स, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू, व्हाट इज 1 यूनिट? And 3.6 into 10 to the power 6.
किलोवाट आवर में बताओ मुझे। 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैंने तो खुद ही आंसर बोल दिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट इज योर पावर, यानी 1 किलोवाट जब 1 घंटे के लिए कंज्यूम होता है तो हम उसको बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि हमारे एनर्जी मीटर को पता कैसे चलता है कि हमारे घर में क्या क्या लोड लगा हुआ है एंड हाउ मच यूनिट इज बीइंग कंज्यूम्ड। ये एनर्जी मीटर कैसे पता करता है? गिव मी आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस, जो भी कॉमन सेंस तुम्हारा काम कर रहा हो। एनर्जी मीटर को पता कैसे होता है कि कितना लोड, यू मस्ट हैव सीन जो डिजिटल एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं उसमें ये जो यूनिट कंज्यूम हो रहा है वो एक एलईडी के साथ ब्लिंक करता है एंड द हायर द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड द फास्टर द ब्लिंकिंग इज। इतना देखा है किसी ने? यस मैम। जितना ज़्यादा, अगर सपोज यू switch on all the equipments which is present in your home, the higher the energy being consumed, the faster this blinking will be. So what is making this blinking to go faster? क्या change हो रहा है basically in your energy meter which is making this blinking go faster in a faster mode? Any idea? आई थिंक रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क जो यहाँ पर है उसके वजह से। Okay, rotation of aluminium disc is based upon the electromagnetic induction which is being produced by the two coils. ठीक है, तो बेसिकली वो मैग्नेटाइज होके घूम रहे हैं। ये जो डिस्क है, यही डिस्क है तुम्हारा, ये क्योंकि फ्रंट व्यू है इसलिए ऐसा रेक्टेंगुलर दिख रहा है, बट दिस इज योर एल्यूमिनियम डिस्क। ठीक है, this disc is present between two coils. This is your pressure coil and this is your current coil. This disc is present between two coils, and because of the flux which is produced by the first coil and the flux which is produced by the current coil, these two fluxes cut each other and produce a torque, which torque will enable this aluminium disc to rotate. ठीक है, so that this entire process is nothing but electromagnetic induction process. Now tell me, ठीक है, डिस्क रोटेट कर रहा है, डिस्क अगर फास्टर रोटेट करेगा तो हमारा ब्लिंकिंग जो है वो फास्टर होगा। अग्रीड। नाउ व्हाई दिस डिस्क इज रोटेटिंग फास्टर? ये जितनी जल्दी या जितने ज़्यादा सर्कल्स कंप्लीट करेगा उतना ज़्यादा ब्लिंकिंग होगा। Now the next question is why this aluminium disc is rotating faster? मैंने ऑलमोस्ट तुम लोग को आंसर बता दिया है। मैम इसका वेट कम होता है इसीलिए। वेट कम होगा? वेट तो फिक्स है ना, वेट तो चेंज नहीं है। एल्यूमिनियम डिस्क चेंज थोड़ी हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि फास्टर रोटेट हो रहा है तो डिस्क तुमने चेंज कर दिया। सेम डिस्क अगर तुमने सारे अप्लायंसेस ऑन करके रखे हैं तो सेम डिस्क का रोटेशन जो होगा वो फास्ट होगा, और अगर घर बंद है, कोई अप्लायंस यूज नहीं हो रहा है, तो ये डिस्क का जो रोटेशन होगा, द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज टेकन बाय दिस डिस्क टू कंप्लीट वन सर्कल विल बी हायर। सो व्हाट इज मेकिंग दिस डिस्क टू रोटेट फास्टर? मैंने बताया ये डिस्क पे टॉर्क लग रहा है। And this torque is proportional to the flux which is produced by the phi p coil and the flux which is produced by the current coil. Now the second question is, phi p is your potential coil, yani coil which will measure the voltage
and Cc is your current coil, या phi p is the flux due to the current coil which will measure your current. Now the second question is, when you are increasing the load, current increase हो रहा है, voltage increase तो नहीं होगा. Whether the supply voltage which you are getting in at your home, क्या appliances को increase करने से voltage increase होता है, supply voltage. नो मैम. current increase होता है, Yes, load ma'am. current increase Yes, होता ma'am. है, the amount of current which is drawn by the supply, does it increases? So basically this load current is responsible for faster blinking of this LED. ठीक है, जितना ज़्यादा लोड करंट ड्रॉ होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स जो है वो करंट कॉइल प्रोड्यूस करेगा और उतना ज़्यादा टॉर्क जो है वो इस एल्यूमिनियम डिस्क को रोटेट करेगा, एंड that is how the blinking of this energy meter moves faster. So this is the entire sequence of operation. सबसे पहले अगर हम appliances या load को बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो एल्यूमिनियम डिस्क का नंबर ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज एंड thus the blinking of your LED will increase. सीक्वेंस समझ में आ गया? Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So see, कभी भी कोई भी चीज़ सीखो तो बेसिक्स सीखना ज़्यादा ज़रूरी है rather than learning the numeric the equations and all. So I think मैंने basic clear कर दिया है single phase induction type energy meter का. Now we will move towards the construction and different type of operations वो हम discuss करेंगे. हाँ बोलो. मैम बोल रहे हैं कि लोड बढ़ाएंगे तो ओम्स लॉ से तो करंट कम आएगा ना. क्यों रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है? ये तुम लोगों का डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? कैसे वोल्टेज सेम है, लोड बढ़ाओगे तो कैसे तुम्हारा करंट कम हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो रहा है. नहीं मैम. फिर तो करंट कैसे कम हो जाएगा? सॉरी मैम, हम सोच रहे थे इम्पीडेंस. हाँ, सी कभी भी नेचुरल अगर ये चीज़ अगर तुमको कंफ्यूज कर रही है तो एकदम लेमैन आइडिया से सोचना. तुमने मिक्सर ग्राइंडर में कुछ डाला है, ठीक है, उसका जो जार होता है, जार में तुमने सपोज यू वांट टू मिक्स समथिंग, ठीक है, कोकोनट चटनी बनाना है तुमको, तो जितना ज़्यादा उसको टाइटली तुम जितना ओवर फिल कर देते हो दैट इज़ योर लोडिंग. जितना ज़्यादा उसको फिल करोगे उतना ज़्यादा तुम लोड उस मिक्सर ग्राइंडर के लिए बढ़ा रहे हो. येस और नो? इज इट ओके? यस मैम. लोड Yes, बढ़ा ma'am. रहे हो उसके लिए जितना ज़्यादा तुम उसको फिल करोगे, एकदम तुमने जार को खचाखच एकदम भर दिया है, पूरा लोडेड है तुम्हारा जार, एंड नाउ व्हेन यू स्टार्ट द मिक्सर ग्राइंडर तुम देखोगे कि तुम्हारा जो जार है वो गर्म हो जा रहा है. ठीक है, कई बार देखोगे कि जार क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लेगा और ये जार तुम्हारा क्यों गर्म हो जा रहा है? बिकॉज इट इज़ ड्रॉइंग अ हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सप्लाई. और वही अगर तुम हाफ जार या आधे जार या थोड़ा सा सामान उसमें डाल करके उसको मिक्स करने की कोशिश करोगे, तुरंत मिक्स हो जाएगा एंड देयर विल बी नो हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, तो जितना ज़्यादा किसी भी कंडीशन में जितना भी ज़्यादा लोड को बढ़ाओगे, इन केस ऑफ मोटर्स ऑल्सो, मोटर में भी एक हाई करंट रेटिंग जो दी गई जाती है मोटर की, कंसीडर इट 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी है, ये रेटिंग किस लिए दिया जाता है? बिकॉज द लोड करंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द रेटिंग ऑफ द मशीन. अगर उससे ज़्यादा होता है तो हीट होने की वजह से हमारा मशीन जो है वो ख़राब हो जाएगा. Because it is made up of coils and coils have insulation and insulation will break down, जिसकी वजह से there will be short circuit between two or more coils of the machine. So that is why एक load current दिया जाता है. तो this is a simple explanation for why when the load is increased the amount of current which is drawn by the circuit will increase, because उसको उतना power चाहिए उस load को
एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी लोड हो, वाटर पंप हो या मिक्सर ग्राइंडर हो, जो भी टाइप का लोड हो, उसको उतना पावर चाहिए। और वो पावर वोल्टेज तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट ही आ रहा है, फिक्स्ड वोल्टेज, फिक्स फ्रीक्वेंसी। So what will increase? Your current will increase to increase the active power, which will help your load to execute. Is it clear now? तो ओम्स लॉ भूल जाओ। ओम्स लॉ यहाँ पर ओम्स लॉ को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओम्स लॉ जहाँ याद करना तो वो काम खत्म हो चुका है। Whenever anybody says कि लोड इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि करंट इंक्रीज हो रहा है। Is it okay? Shall we Yes, ma'am. shall we go to the test? ठीक है, तो I'll share the questions with you. Question screen पे दिखेगा। You have 10 minutes। 1:17 पे मैं क्लास एंड कर दूंगी। ठीक है, so these are your questions. 5 questions, 2 minutes for each question. कॉपी पेन पे सॉल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट मेल करना है तुम लोग को। नाम, रोल नंबर, बैच, सेमेस्टर लिख देना अपने कॉपी पे। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ओके।
Done? नो मैम। तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्वेश्चंस का? Take a screenshot so that if I end the class, you have the questions with you. मैम सेकंड में क्वेश्चन में मैम सेकंड क्वेश्चन में एरर का रेंज कब निकालना है? सब जो भी एक्सपेरिमेंट उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, कुछ तो नहीं दिया? तुमको 4 रीडिंग दी गई है, चारों में डिफरेंस ऑफ रीडिंग है, तो उसी डिफरेंस का रेंज निकालना है। ओके डन। जितना आ रहा है उतना कैलकुलेट करके मुझे भेज दो। आई विल सी द मेथड हाउ यू आर डूइंग। ज़रूरी नहीं है कि आंसर सही होना चाहिए। जो तुम्हें समझ में आ रहा है बाय योर कॉमन सेंस सॉल्व द आंसर्स एंड सेंड इट टू मी सो दैट आई विल सी कि तुम कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कराए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चंस है जो थोड़े से ट्रिकी है। सो यूज़ योर कॉमन सेंस एंड सॉल्व। अगर नहीं समझ में आएगा वी विल डिस्कस इट इन क्लास। सो आई एम एंडिंग आवर क्लास नाउ।